دو اپنی ہستی کو اگر تم مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے، وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نام ورزی کو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعت سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، ہوا سے خشک تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے خدا کے واسطے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ۔ کبھی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نومید نومیدی، سوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آپ کی پیشانی چمکتی ہوئی، آپ نے بہترین میزبانی کا حق ادا کر دیا، سنانے والے سنا رہے ہیں، آپ سن کر کے بھی تھک نہیں رہے ہیں، مقدمہ ہار کر کے بھی بیٹھ نہیں رہے ہیں، جبکہ سننے والا کھا پی کر کے بیٹھے تو 45 منٹ تک دماغ کام کرتا ہے اور اس کے بعد سیدھے سنسان چلا جاتا ہے، قبرستان چلا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ جلسے کی کرامت ہے، اللہ اس مدرسے کو آباد رکھے، آمین، مکان مکین دونوں سے مبارکباد رکھے، آمین۔ پہلا پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی کیسے بنتا ہے کیسے بگڑتا ہے، پہلا پیغام بہت چھوٹا، 3 منٹ میں گزر جائے گا، بہت اچھا سن لیں، دھیان سے سنیے گا۔ آدمی بنتا کیسے ہے، آدمی بگڑتا کیسے، اس راز کو سنیے گا۔ باپ نے بیٹے سے نصیحت کیا، بیٹا آنکھ کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، پیٹ کی حفاظت کرنا، دل کی حفاظت کرنا۔ بیٹے نے پوچھا ابا حضور زبان کی حفاظت کیسے ہوگی، آنکھ کی حفاظت کیسے ہوگی، کان کی حفاظت کیسے ہوگی، دل کی حفاظت کیسے ہوگی، پیٹ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ باپ نے کہا کہ بیٹا زبان کی حفاظت کرنا جب دوسرے کی مجلس میں بیٹھو گے، آنکھ کی حفاظت کرنا جب دوسرے کے گھر جانا، پیٹ کی حفاظت کرنا جب دوسرے کے دسترخوان پر بیٹھنا، بیٹا دل کی حفاظت کرنا جب نماز میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا۔ 2 چیزوں کو آپ ہمیشہ بھول جائیے، آپ سے بڑھ کر کوئی انسان ہو نہیں سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ 2 چیزوں کو اگر زندگی بھر کے لیے بھولنا ہوگا، 2 چیزوں کو زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا ہوگا۔ احسان کر کے اس احسان کو بھول جائیے، آپ سے بڑا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑا مسلمان کوئی ہو نہیں سکتا۔ احسان کر کے احسان کو بھول جائیے، اور کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو بدلہ لینا بھول جائیے زندگی بھر کی۔ اللہ آپ کی طرف سے بدلہ لے گا اور آپ کو چمکائے گا، اسے مٹائے گا، آپ کو آگے کرے گا، اسے پیچھے کرے گا۔ احسان کو بھول جائیے، بدلہ لینا بھول جائیے، 2 چیز کو کبھی نہیں بھولنا ہے، اللہ کو کبھی نہیں بھولنا ہے، موت کو کبھی نہیں بھولنا ہے۔ انشاءاللہ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، آج اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ دھیان رکھیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 5 آدمی سے دوستی کی، 3 آدمی سے دوستی مت کیجیے۔ آدمی بنتا کیسے ہے بگڑتا کیسے، یہ میرا پیغام تھا۔ 5 آدمی سے دوستی مت کیجیے، 3 آدمی سے دوستی کیجیے۔ پہلا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے جھوٹا آدمی، قریب کو دور کو قریب بتائے گا، آپ کو نقصان ہی ہوگا، نفع نہیں ہوگا۔ پہلا آدمی جھوٹے آدمی سے دوستی نہیں کرنی۔ دوسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے جاہل سے دوستی کریں گے وہ نفع پہنچانے کے بجائے آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ تیسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے نافرمان،
शराबी, कबाबी, ऐसे लोगों से आपको दोस्ती नहीं करनी, आपको एक लुकमे में भेज डालेगा। चौथा आदमी जिससे दोस्ती नहीं करनी है बखील, कंजर, मक्खी चूस। आप मुसीबत में होंगे, हाथ फैलाएंगे, वो हाथ खींच लेंगे। बखील से दोस्ती नहीं करनी। पांचवा आदमी जो रिश्ता तोड़ता है, भाई को भाई से लड़ाता है, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाता है, उसका तो खाना खुद खराब है। उससे दोस्ती करने के बाद आप भी बर्बाद होंगे, न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के। तीन आदमी से आप दोस्ती कीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ। मेरी उम्र तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ उसको नकल कर रहा हूँ। तीन आदमी से आप दोस्ती कीजिए। बूढ़े आदमी से दोस्ती कीजिए। बूढ़े आदमी की जो दाढ़ी पड़ती है, धूप में नहीं पड़ती है, ठोकर से पड़ती है। हमारे पास जोश होता है, उनके पास होश होता है। हमारे पास मसाला होता है, उनके पास तजर्बा होता है। बूढ़े से दोस्ती करेंगे, आपको तजर्बा मिलेगा। डॉक्टर से दोस्ती कीजिए, आपको इलाज मालूम होगा। आलिम से दोस्ती कीजिए, आपको इल्म मिलेगा। तीन मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है, दोनों हाथ उठा दीजिए, जोश के साथ। बिल्कुल सही जा रहा है इंशाअल्लाह। एक जवान ने रिश्ता भेजा लड़की वाले के। लड़की वाले ने कहा कि आईना में मुंह देख लो, हम रिश्ता नहीं देंगे, इस शर्त पर रिश्ता देंगे, मेरा जो तालाब है इसको दूध से भरना होगा। मायूस होकर के आ रहा है। बूढ़े ने पूछा कि भाई क्या हुआ? का शर्त रख दिया है, लड़की मिलेगी, तालाब को दूध से भरना होगा। बूढ़े ने कहा कि शर्त मंजूर कर लो, तुम्हारा रिश्ता हो जाए। बिल्कुल आसान। जा करके कहो तुम अपना तालाब खाली करो, हम तुम्हारे तालाब को दूध से भरेंगे। उसकी नानी मर जाएगी, अपना तालाब खाली नहीं कर पाएगी। बूढ़े के पास रहोगे, तजर्बा मिलेगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। बूढ़ा आया डॉक्टर के पास, का सर में दर्द है, सीना में दर्द है, बलगम भी जमा हुआ है, नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर ने कहा बुढ़ापे की वजह से। बूढ़े ने तमाचा मारा, कहा कि इसका भी बुरा नहीं मानेंगे, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से। दूसरी मिसाल आ रही है, आखिरी मिसाल पर पैगाम में खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो ठंडी होती है। जो हवा उधर से आती है मदीना से हिंदुस्तान आती है, वो गर्म होती है। हजरत नानोतवी से किसी गैर मुस्लिम ने मजाक में पूछा, वली साहब आप ये बताइए, जो हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है कितनी प्यारी होती है, कितनी मीठी होती है, कितनी ठंडी होती है, और जो मदीना से लौटती है वो हिंदुस्तान में आकर के कितनी गर्म होती है। तो हजरत नानोतवी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्हीं के फैजान का करम है कि आप देख रहे हैं कि इतने सारे मदरसे उसी दारुल देवबंद का चिराग है, उसी की रोशनी है। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि देखिए पंडित जी, यहाँ से जो हवा जाती है हिंदुस्तान से मदीना, वो ठंडी इसलिए होती है कि उसको खुशी होती है कि नबी के शहर जा रहे हैं, नबी का रोजा देखूंगी, नबी की जियारत करूंगी। वो खुश होती है इसलिए ठंडी हो जाती है। जो हवा उधर से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है, उसको गम होता है कि नबी से जुदा हो रही हूँ, नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ। गम की वजह से वो सरापा गर्म हो जाती है। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में। जहाँ इत्र खींचता है जाओ वहाँ गए, तो आओगे एक रोज कपड़े बसा कर। जहाँ इत्र खींचता है जाओ वहाँ गए, तो आओगे एक रोज कपड़े बसा कर। जहाँ आग जलती है जाओ वहाँ गए, तो आओगे एक रोज कपड़े जला कर। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम। जहाँ इत्र खींचता है जाओ वहाँ गए, तो आओगे रोज
कपड़े बसा के। खाता बहुत अच्छा खुला है, दिल से आपने कबूल किया। मैं दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपके तजर्बे में इजाफा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हमारे 4 दुश्मन हैं। अपने 4 दुश्मन को आप पहचान लीजिए, अल्लाह आपको यहाँ की मुसीबत से भी निकाल देगा, वहां की मुसीबत से भी निकाल देगा। 4 दुश्मन को जानना चाह रहे हैं, हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है। इतनी देर आप जलसा सुनते नहीं थे, लेकिन मोहब्बत में जलसा आप सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। पहला दुश्मन हमारा कौन है? शैतान। एक नमाज पर 4 हमले कर लेगा। हमें एक ही नमाज पढ़नी है, लेकिन वो 4 बार हमला करना है। हदीस में आता है कि वजू करो तो नाक में पानी डालो और नाक को झाड़ो। जानते हैं ये राज क्या है? आप वजू करते हैं, नाक में पानी डालते हैं और उसको झाड़ते हैं। हदीस में आता है कि शैतान नाक में घुस जाता है, इसलिए नाक में पानी डालो, उंगली करो और झाड़ो, ताकि वो उल्लू का पट्टा अंदर न रहे, बाहर चले। पहला हमला शैतान का, एक नमाज पर पहला हमला। दूसरा हमला ये होता है कि जब आदमी इस ख्याल से सोता है कि मुझको सोना ही है, जागना नहीं है, तो शैतान उसकी बुद्धि पर 3 गिरा लगाता है। उसकी आंख उस वक्त खुलती है जब सूरज उसके सर के ऊपर मुसल्लत हो जाता है। दूसरा हमला। तीसरा हमला दिखाने के लिए जा रहा हूं, जब आदमी का इरादा ही नहीं है कि मुझे उठ करके अजान सुननी है, नमाज पढ़नी है, वो सोता रह जाता है, तो जब वो उठता है तो उसका बदन टूटता है। आप देखेंगे पूरा बदन टूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि पत्थर के नीचे दबा हुआ और पत्थर से खींच करके उसको निकाला गया। इतना बदन भारी लगता है। जानते हैं क्यों? ये शैतान का तीसरा हमला होता है। शैतान उस आदमी के कान में पेशाब करता है। चौथा हमला दिखाने के लिए जा रहे हैं। आदमी नमाज में खड़ा हो गया, नमाज पढ़ रहा था, अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आगे पढ़ना क्या है, मैंने पीछे पढ़ा था। अचानक उसके साथ 1 मिनट में 1 सेकंड में ऐसा मसला हो गया। पढ़ रहा था, पूरा ध्यान है, नमाज पढ़ रहा था, पहली रकात सही पढ़ी, दूसरी रकात सही पढ़ी, तीसरी रकात में जैसे आया उसका ख्याल कहीं से कहीं चला गया। अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने पढ़ा क्या है, मुझे पढ़ना क्या है। दरअसल जब नमाज में अल्लाह का बंदा खड़ा होता है, वो दिमाग के ऊपर मुसल्लत हो जाता है। वो चाहता ही नहीं है कि खुदा का बंदा खुदा की बंदगी के लिए खुदा के सामने खड़ा हो जाए। एक शैतान, एक नमाज और 4 बार हमले। दूसरा दुश्मन हमारा कौन है? ये नफ्स है। आज सारी दुनिया को इल्जाम है कि शैतान ने मुझसे शराब पिलवा दिया, जिना करवा दिया, लेकिन शैतान को शैतान किसने बनाया? इसी नफ्स ने बनाया। उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 80 आदमी को खड़ा करके आप पूछिए, आप परेशान तो नहीं है? वो कहता हम परेशान है। तो किससे परेशान है? तो मैं अपने पड़ोसी से परेशान हूं, मैं अपने भाई से परेशान हूं, मैं अपने रिश्तेदार से परेशान हूं। जानते हैं उसको परेशान किसने कर रखा है? पड़ोसी ने परेशान नहीं किया, भाई ने परेशान नहीं किया, रिश्तेदार ने परेशान नहीं किया, इस नफ्स ने परेशान किया जो छुपा हुआ है। कसूर नफ्स का है, इल्जाम भाई के ऊपर डालना। इंसान का दूसरा दुश्मन नफ्स है। तीसरा दुश्मन दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। तीसरा दुश्मन कौन है? नामहरम औरत है, अजनबी औरत है, फेसबुक की लड़की है, व्हाट्सएप की लड़की है, लड़का को फोन की, पागल बना दिया, लड़का उसके पीछे पागल है। लड़की को पता था ये लड़का मालदार है, अकाउंट बैलेंस का मालिक है, वो शादी का झांसा देती है, उससे निकाह कर लेती है। ये पाकिट मार लड़की से निकाह करता है, बाप की पसंद के खिलाफ, माँ की पसंद के खिलाफ, रिश्तेदार की पसंद के खिलाफ। उसने झांसा दिया शादी का, अकाउंट बैलेंस की मालिक हो गई, दुकान मकान की मालिक हो गई। उसके बाद पीठ पर लात मार दिया, ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का। तीसरा दुश्मन यह अजनबी औरत है। चौथा दुश्मन दिखाने के लिए जा रहा हूं, बीवी है और बच्चे। आप कहेंगे वो कैसे? आदमी कंजूस बनता है बीवी की वजह से, आदमी कंजूस बनता है बच्चे की वजह से।
آدمی حرام کماتا ہے بیوی کی وجہ سے، آدمی حرام کماتا ہے بچے کی وجہ سے، بچوں نے تانا مارا تم تو کہیں کے نہیں ہو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم تو کنگال ہی رہے، دوسرے لوگ مالا مال ہو گئے۔ اب اس نے آنکھ بند کر کے کمانا شروع کیا، حلال کو دیکھا نہیں، حرام کو دیکھا نہیں، بال بچے کی محبت میں حرام کما رہا ہے، لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے کما رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں